خدا کا کلام سنیں گے ایوب کی کتاب اس کا 3 باب۔ اس کے بعد ایوب نے اپنا منہ کھولا اور اپنے دن پر لعنت کی، اور ایوب خطاب کر کے یوں کہنے لگا کہ وہ دن جس میں میں پیدا ہوا معدوم ہو جائے، اور وہ رات بھی جس میں کہا گیا دیکھو بیٹا ہوا ہے، وہ دن اندھیرا بن جائے، خدا اوپر سے اس کا لحاظ نہ کرے اور روشنی اس پر نہ چمکے، تاریکی اور موت کا سایہ اسے ڈانپ لے، بادل اس پر چھا جائے، دن کو سیاہ کرنے والی چیزیں اسے ڈرائیں، اس رات کو گہری تاریکی پکڑ لے، وہ سال کے دنوں میں نہ گنی جائے، مہینوں کی تعداد نہ آئے، وہ رات بے پھل ہو، اس میں خوشی کی آواز نہ جائے۔ جو بحر پر لعنت کرتے ہیں وہ اس پر لعنت بھیجیں، یعنی وہ جو لویاتان کو چھیڑنے کے لیے مقرر ہیں، اس کی شام کے ستارے سیاہ ہو جائیں، وہ روشنی کی امید کرے پر نہ ہو، وہ صبح کی پلکیں نہ دیکھیں، کیونکہ اس نے میرے لیے شکم کے دروازوں کو بند کر نہ کیا اور نہ میری آنکھوں سے مصیبت چھپائی۔ میں رحم ہی میں کیوں نہ مرا، شکم سے نکلتے ہوئے میری جان کیوں نہ جاتی رہی، میں کیوں گھٹنوں پر لیا گیا اور میری چوسنے کے لیے چھاتیاں کیوں ہوئی، کیونکہ اس وقت میں پڑا ہوا چپ چاپ ہوتا ہوں اور سویا ہوا آرام کرتا ہوں زمین کے ان بادشاہوں اور مشیروں کے ساتھ جنہوں نے اپنے لیے مقبرے بنائے، یا ان امیروں کے ساتھ جن کے پاس سونا تھا، جنہوں نے اپنے گھر چاندی سے بھر لیے، یا پوشیدہ استحقاق کی طرح تو میں زندہ نہ ہوتا، یا ان بچوں کی مانند جنہوں نے روشنی نہیں دیکھی، وہاں شریر فساد کرنے سے رکے رہتے ہیں اور وہاں پر تھکے ماندوں کو آرام ملتا ہے، وہاں سب قیدی چین میں ہیں اور دروگے کی آواز نہیں سنتے، وہاں چھوٹے اور بڑے برابر کے ہیں، غلام اپنے مالک سے آزاد ہے، جو مصیبت میں ہے اسے روشنی کیوں دی جاتی ہے اور تلخ جان والوں کو زندگی کیوں ملتی ہے، جو موت کا انتظار کرتے ہیں لیکن وہ نہیں آتی، وہ دفینے سے زیادہ اس کی تلاش کو کھودتے ہیں، اور وہ نہایت شادمانی کرتے اور خوشی ہوتے ہیں جب قبر کو پا لیتے ہوں، اس آدمی کو جس کی راہ چھپی ہے، جسے خدا نے چوگرد سے بند کر دیا، کیونکہ میری روٹی کی جگہ میری آہیں ہیں اور میرا چیخنا چلانا پانی کی طرح جاری ہے، کیونکہ جس بات سے میں ڈرتا ہوں وہ مجھ پر آ پڑتی ہے، اور جس سے میں خوف زدہ ہوں وہی مجھ پر واقع ہوتا ہے، مجھے تسلی نہیں اور آرام نہیں اور خوشی نہیں، اور مصیبت مجھ پر ہجوم کرتی ہے۔ پاک کلام کے پڑھے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آج جو موضوع ہے ہماری آنسٹ پریئر، کیا موضوع ہے؟ آنسٹ پریئر، یعنی سنسیئر، خالص دعا، خالص دعا۔ کیا موضوع ہے؟ خالص دعا۔ دیکھیے ابھی اب غور کرنا، یہ ایوب جس کو ہم نے صرف ایک ہی آیت یاد رکھی ہے، جس کی ایک ہی آیت سب کو آتی ہے، کیا؟ تو نے دیا، خدا نے دیا، تو نے دیا، تو نے لیا، تیرا نام، بس یہ آتی ہے۔ ابھی پڑھو تھے کی کہہ رہے ایوب، یہ بھی پڑھو، دیکھو اپنے کیسے وہ اپنے پیدائش کے دن پر لعنت کرتا ہے۔ کیوں میری خوشخبری دی گئی کہ بیٹا پیدا ہوا ہے؟ کیوں مجھے ماں کے پیٹ میں کیوں نہ مار دیا گیا؟ یہ کیا زبان کیا ظاہر کرتی ہے اس خدا کے سامنے جو ہمارا باپ ہے، خدا ہے، اس کے سامنے ہم جس مصیبت میں سے گزرے اس کا اظہار کیا کرو۔ یہ بھی بھروسے کو ظاہر کرتا ہے، اسی کے آگے کسی اور کے نہیں۔ انڈیل دو اپنے غم، خالص جس میں سے گزر رہتے ہیں وہ بیان کیا کرو۔ This is called the dark night of soul۔ کیا کہیے؟ ڈارک، جو بچے انگلش جانتے ہو، ڈارک نائٹ آف سول، روح کی جو
गमगीनी, रूह की गमगीनी। और जो ये एक्सपीरियंस कर लेता है वही खालस होता है, और फिर उसकी दुआ भी बड़ी खालस होती है। ऐसे शख्स मुकम्मल तौर पर खुदा पे छोड़े जाना, और उसी को मुबारक कहा गया जो मुकम्मल तौर पर खुदा पे छोड़ा जाता है। पता नहीं किस हद तक खुदा हमें लेकर जाना चाहता है। शिकवे भी करने हैं खुदा के साथ, गिले भी करने हैं, क्यों नहीं। बच्चे प्यार जिनके साथ होता है उनके साथ दिल की बात करते हैं, ये दिल की दुआ है। इनको, इन बातों को आप उस कॉन्टेक्स्ट में लें। बागी नहीं होना है खुदा से, ये जरूरी है, ठीक है। बागी नहीं होना है, लेकिन दूर अपने दिल की पड़ास कढ़िया करो, खुदा देगे। वो मत दबा के रखा करो। कर लो, ऐ देखो अयूब, क्योंकि हमने बस हर जगह एक ही सीख लिया, तूने दिया तूने लिया, तेरा नाम मुबारक। नहीं, ये खालस ऑनेस्ट प्रेयर है। अब मैं ये तो अयूब, और आगे देखिए, आपको पता है सारी अयूब की कहानी किन लोगों को आती है? शाबाश। किसको नहीं आती है अयूब की कहानी? हाँ, चलो घर जाके पढ़ लो। फिर वो कहानी नहीं बयान करूँगा, आप पढ़ लें, क्योंकि आगे जो मैं बयान करना चाहता हूँ वो ज़्यादा, वो मेरा मौजू है, ऑनेस्ट प्रेयर। यकीनन अयूब बहुत अमीर आदमी था, सब कुछ चला गया, सब कुछ जाता, एक मुसीबत के बाद दूसरी। पुत्र इधर ध्यान करो, इधर ध्यान करो जी। एक के बाद दूसरी आफत, तीसरी आफत, चौथी आफत। एक बात ज़रूरी है, जब ये आफत पे आफत आए, हाँ, आम लोगों में जो दूसरे जो बहुत गलत फहमी पाए, वो ਤੁਹਾਡੇ घर च कुछ किया है, जादू की तरफ लोगों के जहनों को लोग, साड़ी रिश्ते बंद ने, साड़ियाँ नौकरियाँ बंद कीतियां ने। नहीं, इसको इस तरफ से ना लें, बल्कि आप इसको समझें कि खुदा आपकी रूह को बहुत एक्सटेंड कर रहा है, बहुत दिल को बहुत बड़ा कर रहा है, बहुत बड़ा दिल कर रहा है, बहुत आपको प्यूरिफिकेशन कर रहा है आपकी। कभी भी इस किस्म की सोच ना रखें जो खुदा में हो, उन पर जादू कोई असर होते हैं, शैतानी अटैक है, लेकिन हमें कुछ नहीं कहते। आप पाकशराकत लेते हैं, जिंदा यस्सु का, वो खुदा यस्सु जो मुर्दों में से जी उठा, वो बदन लेते हैं, आपको बेअसर हो जाते हैं, आपके कोई असर नहीं होता। ये गलत तालीम ना सुने जो बहुत ये घरों में फिरते हैं, जो पास्टर जो ਤੁਹਾਡੇ घर, इसलिए ना आने दिए, सारा घर तबाह कर देंगे जी। उन्हें तालीम ही है, ओए मैनू रूह ने दसिया ये गलत तालीम है, मुझे आगाही हुई है कि इधर कोई जादूगरी है। नहीं, और वही जेल में बैठते थे, फिर वो तेरी तो सस ने जादू किया है। ना सुने। मैं कई घरों को जानता हूँ जिनको इन लोगों ने बर्बाद किया। बहन भाई बहुत गहरी मोहब्बत, वही दुश्मन बन जाते हैं जी। वो तुम्हारी तो बहन ने जादू किया, वो बहन के खिलाफ हो। मत सुने, और इन लोगों को जब घर बर्बाद करना तो फिर उनको आने दें। बहुत से वाक़यात मैं सुना सकता हूँ, क्योंकि तालीम नहीं होती कोई, और यही इसी के ऊपर बहाने आओ थानू पैसे दो, असी दुआ करेंगे, पैसे दो, ठगते रहते हैं लोग। ये कमाई का ज़रिया है। इस बदी से बचें, ऐसे लोगों से बचें जो घरों को बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा मौजू ये नहीं है, सिर्फ आपको मैं बाखबर करना चाहता हूँ। जब दुख मुसीबत में मुसीबत आ जाए, रिश्ते ना मिलो, एकदम उन्हें पता चल जाता है, फ़ौरन पहुँचते हैं उधर, फ़ौरन ਤੁਹਾਡੇ तो घर तो जादू है, मैं दुआ करांगा तो रिश्ते भी हो जाएंगे। नहीं, खुदा आपको बहुत बड़ी रूह में बरकत दे रहा होता है, प्यूरिफिकेशन कर। अब ये देखें, अयूब किसी ने जादू किया था, खुदा इसको अयूब को सबके सामने बड़ा नमूना कि इस दुख में भी अपने खुदा को नहीं छोड़ा। ठीक है, ऑनेस्ट प्रेयर की, लेकिन फिर इस अयूब को तसल्ली देने के लिए इसके दोस्त आते हैं। आगे सुनिए। जी, दोस्त आते हैं, वो भी गलत बातें करते हैं। यही कई गलत लोग जो दुख मुसीबत में हमारे पास आते हैं, जो ईमान में खोखले होते हैं, वही हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। ये डायरेक्टली मिसाल यही है उन लोगों पे। मुसीबत में हो, कभी भी गलत लोगों की राय मशवरे
ना लें। अगर तबाह होना है तो फिर हो जाओ। ये दोस्त उसे बयान करते हैं बहुत सी चीज़ें, शायद अय्यूब ने कोई गुनाह किया है, शायद ये हुआ होगा, ये हुआ, यही लोग कहते हैं, ठीक है। लेकिन आगे फिर देखिए, आगे चलकर हम देखते हैं फिर खुदा खुद जवाब देता है अय्यूब को। खुदा खुद जवाब देता है। खुदा, हाँ, लोगों को नहीं सुनना है, गलत लोगों को नहीं सुनना। अगर घर नूं बर्बाद करना फिर तुसी सुन लो उन्होंने। खास तौर पे जब मुसीबत होगी, ये लोग इंतजार कर रहे हैं, कोई आफत है फौरन पहुंच जाएंगे। देखो जी किधर गए थोड़े फादर, असी पहुंचे हैं, और फिर गलत तबाह करते हैं, लीरां कर देंगे ने घर, जिस घर च बढ़ जाओ। मैंने बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ जिन लोगों के घरों को बर्बाद किया इसी तरीके से। बचे हुए, हम आपको प्यार करते हैं, आपको बचाना चाहते हैं इससे। जो खुदा का मनसूबा क्या है, कलाम की मुताबिक सोचा करो। अभी खुदा से रहनुमाई मांगे, खुदा क्या कहता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा इल्हाम है। ये नहीं बाइबल को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। हमें लोगों में खौफ पैदा नहीं करना, बल्कि लोगों को आज़ाद करना है। हाँ जी, ये यीशु आज़ाद करता है हमें। आमीन। हाँ, ओके, आगे देखिए। अय्यूब को खुदावंद जवाब देता है। हम निकालते हैं जहाँ खुदा ने अपना जवाब उसे दिया, वो मैं उसकी तरफ जाऊँगा। ये शुरू होता है ये 38वें बाब से, जो अय्यूब को खुदा जवाब देता है। अब सुनिए, चंद बीच में से मैं पढ़ूंगा, और फिर मैं कुछ ज़बूरों में से भी बीच में से, और खुदावंद यीशु मसीह की सलीब पर दुआ वो भी, और इससे बहुत से लोगों को तसल्ली मिलेगी। आज मेरे पास सब सवालों का जवाब नहीं है, और ना हम दे सकते हैं, ठीक है। याद रखें, सफरिंग में बहुत से, हाँ, आप ध्यान से सुने, खुदा जवाब देता है, ओके। और बहुत बेस्ट है अय्यूब की किताब, जब आप बहुत ज़्यादा सफरिंग में गुजर जाते हैं, ये बहुत अच्छी किताब है। ये बेस्ट जवाब है उन लोगों के लिए जो कितने देर से दुआ कर, कितनी मुसीबत में से मुसीबत, फिर मुसीबत, फिर आफत। उन लोगों के लिए बहुत खूबसूरत किताब है। आप सुनिए, 38वें बाब की पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। तब खुदाबंद ने कलाम करके बगोले में से अय्यूब से कहा, ये कौन है जो नादानी की बातों से मशवरत को तारीक करता है? अपनी कमर बांध और मर्द बन, मैं तुझसे सवाल करूंगा। खुदा अय्यूब से सवाल करता है, मैं तुझसे सवाल करूंगा, बस तू मुझसे बयान कर, तू कहां था जब मैंने जमीन की बुनियाद रखी? कहां था? तुझ में हिकमत है तो बयान कर, किसने इसके पैमाने रखे अगर तू जानता है? किसने इसकी जरीब खींची? कौन सी चीज पर उसकी बुनियादें धरी गई? या किसने उसके कोने का पत्थर रखा जिस वक्त सुबह के सितारे मिलकर गाते हैं और खुदा के फरजंद खुशी से ललकारते हैं? किसने समुद्रों को दरवाजों से बंद किया जिस वक्त कि वो गोया रहम से निकलकर फूट पड़ा? जब मैंने बादल को उसका लिबास और तारीकी को लपेटने का कपड़ा बनाया, उसके लिए मैंने अपनी हदें बांधी और उसे अड़ंगे और दरवाजे लगाए और कहा, यहां तक तू आएगा और आगे ना बढ़ेगा, यहां तेरी मौजों का जोर टूटेगा। क्या तूने अपने याम में सुबह पर हुक्म किया है या फजर को उसकी जगह बताई है कि वो जमीन के किनारे को पकड़ ले और शरीर वहां से गेदे जाए? क्या तू समुद्र के चश्मे में दाखिल हुआ है या गहराओं के तह खाने में चला है? तो मैं भी इसकी वजाहत करता हूं, सुनो। तुम्हारा दुख जो होता है उस पूरी दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा करें। आपका दुख पूरी दुनिया को नहीं है, पूरी दुनिया का खालिक जो है
وہ اس چھوٹ آپ کا دکھ معمولی سا ہے، اور مت خیال کریں کہ ساری خدا کی جتنی اچھی چیزیں ہیں ان کو نہ بھول جایا کریں۔ جب ہم صرف اسی پر فوکس کرتے ہیں، بس یہ کدھر گیا خدا، بس ادھر ہی نہ رہیں، اس سے نظر ہٹا کر خدا کے بڑے بڑے کاموں کو دیکھا کرو۔ وہ خدا نے سمندر بنائے، پہاڑ بنائے، انسانوں کو پیدا کیا، خدا کے بڑے بڑے کاموں کی طرف دیکھا کرو، اور پھر آپ سمجھیں گے تو خدا کی بہت۔ میں تو ایم چھوٹے سے لوگ کو لے کے بیٹھا ہوا ہوں، ہمیشہ پوری دنیا کے کانٹیکس میں، اس پس منظر میں، اس روشنی میں اپنے دکھ کو دیکھا کرو، پھر آپ کو سوال کا جواب مل جائے گا۔ پھر آپ شکر خداوند، میرا دکھ تو کچھ بھی نہیں ہے، جو تیری مہربانی ہے اس کے مقابلے میں وہ بہت بڑی ہیں۔ کیا تو جانتا ہے خدا نے مجھے تخلیق کیا ہے، خدا نے پیدا، جب تو رحم سے نکلا میں تجھے جانتا ہوں، جیسے ارمیہ نبی کہتا ہے۔ یہ خدا کے بڑے بڑے بھید ہیں۔ تو یہ فوکس اس دکھ کے نہیں، اسے ہٹا کر اوپر ذرا سوچا کریں۔ آمین۔ اور یہ سارے 38ویں باب میں سے ساری جو بہت ہی خوبصورت ساری باتیں ہیں، خدا نے اسے جواب دیا 38ویں باب سے۔ یہ آگے آپ خود ضرور پڑھ سکتے ہیں، یہ ساری خدا خود اسے جواب دیتا ہے، اور یہی تسلی کا جواب ہے۔ انسان اپنی سوچ سے، کوئی فلسفی نہیں، کوئی گرو نہیں، کوئی ٹیچر نہیں، یاد رکھیں، ہمیں اس دکھ سے نکال سکتا خدا کا کلام نکالتا ہے۔ اور اب یہ ڈارک نائٹ آف دا سول، جو بڑے بڑے مقدس ہیں، بڑی بڑی ہستیاں، وہ بھی اس میں سے گزرے ہیں۔ سینٹ اگنیشیس، سینٹ فرانسس اسیسی، ان کے اس لیے ایسے بڑے بڑے تجربے ہیں خدا کے، انہوں نے پھر سرنڈر کر دیا۔ آگ میں سے ہمیں ڈالے، آگ میں ڈالے آمین، پانی میں ڈالے آمین، جہاں بھی ڈالے آمین، کیونکہ انہوں نے وہ کھنگال لی تھی وہ ورشپ۔ شاید آپ کس تجربے سے خدا بھی آپ کو بہت بلند کر رہا ہے، بہت بڑا بنا رہا ہے، بہت لوگوں کے سامنے بلند کر دے گا۔ دیکھیے پرانے وقتوں میں جو وہ کیمرے ہوتے تھے، اس میں فلم ڈالی جاتی تھی، فلم ڈالتے تھے، پھر وہ فلم رول ڈالتے تھے، اور پھر جو وہ ختم ہو جاتا پھر نیا ڈالتے، اس کو پھر کیا کرتے تھے، ڈیولپ کرتے تھے، اسے کیا کرتے تھے، اور ڈیولپ کہاں کیا جاتا تھا، اندھیرے میں۔ اندھیرے میں ہمیں بھی خدا اس ڈارک نائٹ میں ڈیولپ کرتا ہے، ہاں جی۔ آپ کبھی بھی ان کو یقیناً شکوے بھی کرنے ہیں، گلے بھی کرنے ہیں، خدا کدھر ہے تو خدا وہ، ایسے یسوع نے اس لیے۔ اب میں ایک دو زبور کی مثال دیتا ہوں، پھر آپ کو کنکلوڈ کروں گا۔ اوکے، زبور 42 نکالتے ہیں۔ آمین۔ سمجھ آ، مجھے پتہ ہے آج بہت سے لوگوں کو اس کلام سے برکت مل رہی ہے، اور دس از آنیسٹ پریئر، یاد رکھیں یہ آنیسٹ پریئر ہے، آنیسٹ۔ نکالیں دل سے، نہیں باغی نہیں ہونا ہے، لیکن نکالیں، اپنے شکوے بھی کریں خدا کے سامنے، خدا نال ہی کرنے نا۔ یہ سینٹ اگسٹن، یہ بڑی بڑی ہستیاں اس ڈارکنس سے گزرے ہیں بھائی، یہ بڑے بڑے۔ ہاں، پھر ان کو پوچھے، ایسے نہیں ان کا نام اونچا ہو گیا، خدا نے انہوں خوب تاریکی میں خوب پرکھا ہے۔ وہ پالوس رسول، یہ ساری ہستیاں ایسے ہی نہیں سینٹ بن گئی ہے۔ ہاں جی، ادھر سے خوب رگڑا دیتا ہے نا، خوب رگڑا دیتا ہے، تاکہ کوئی کمی نہ رہ جائے۔ ہاں جی، خوب آپ بھی پتہ نہیں کس کو رگڑا خدا دے رہا ہے، شکر کریں اس رگڑے کے لیے۔ آمین، ہاللیلویا۔ سانوں بھی بتھیرے رگڑے ملتے ہیں، بڑے رگڑے کھاتے ہیں، بہت۔ ہم کئی چیزیں آپ کو بیان نہیں کر سکتے، بتھیرے رگڑے روز خدا سانوں دیتا ہے، لیکن اس کو ہم سمجھتے ہیں خدا میری روح کو صاف کر رہا ہے، ہمیں بہت بلند کر رہا ہے۔ آگے دیکھیں ابھی، آمین، ہاللیلویا۔ ابھی دیکھیں یہ زبور 42، جس طرح ہرنی پانی کی ندیوں کی خواہاں ہوتی ہے، ویسے ہی اے خدا میری جان تیری مشتاق ہے۔ میری روح خدا کی، زندہ خدا کی پیاسی ہے، میں کب جاؤں خدا کے روبرو حاضر ہوں۔ آپ دیکھیے چوتھی آیت، رات دن میرے آنسو میری خوراک ہے۔
आंसू आंसू, रात दिन मेरे आंसू खुराक हैं। जबकि मुझे हर वक्त कहा जाता है तेरा खुदा कहाँ है, बड़ी दुआवां करना है, कितने खुदा तेरा, क्यों नहीं शिफा मिली तेन। यही लोग कहते हैं ना, खास तौर पर जो दुआ करने वाले, उन पे अगर आफत आ जाए, किधर है तेरा खुदा, कहाँ है तेरा खुदा, दिन रात मुझे यही कहते हैं। इसे भी कहा गया, अयूब को भी कहा गया, मुकद्दस फ्रांसिस, बड़ी बड़ी हस्तियों को यही कहा गया, क्या कितने तेरा खुदा, बढ़िया दुआवां करना है, कोई गुनाह कीता होगा तुम। ये दिस इज कॉल्ड डार्क नाइट ऑफ द सोल, तेरा खुदा कहाँ है। जब मैं ये याद करता हूं और अपने में अपनी जान को उंडेलता हूं, दिस इज सिंसियर प्रेयर, ऑनेस्ट प्रेयर, ऑनेस्ट। रोना भी सीखे, खुदा के रोना भी सीखें। मेरे आंसू दिन रात खुराक हैं। मैं ये याद करता हूं कि मैं अपने ग्रोह के हमरा चलता और उन्हें खुदा के घर में ले जाता, खुशी के वास्ते हम तो गाता हूं इज्तिमाई जश्न के साथ, है मेरी जान तू क्यों दलगेर हो गई, मुझ में क्यों आह मारती है कि मेरा दुश्मन मुझ पर फख्र ना करेगा, मगर तू मुझे मेरी बेगुनाही में क़याम बख्शेगा और अपने हुजूर अबद तक कायम रखेगा। आमीन। अब ज़बूर 22 में से चंद आयतें पढ़ूंगा, फिर एक ज़बूर 102 में से। समझ आ रही है, समझ आ रही है, ओके। ये ज़बूर 22 गुड फ्राइडे के वक्त पढ़ा जाता है। गुड फ्राइडे को खुदा का बेटा यीशु खुदा गुनाह से पाक, उस पर क्यों दुख है, और ये सबसे ज़्यादा दुख मसीह पर है। देखिए, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। ये बात दरअसल भरोसे की हो रही है, दरअसल इसको भरोसा समझे। हाँ जी, उस सेंस से लेना है। तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है, तू मेरी इल्तिजा, मेरी फरियाद की आवाज से क्यों दूर रहता है। ऐ मेरे खुदा, मैं दिन को पुकारता हूं पर तू नहीं सुनता। कहा करें, ये सब सिर दुआ है, ये रोना भी, ये शिकवे भी। खालिस दुआ किया करें, जितनी भी खालिस दुआ वो बादलों को चीरती है। आगे देखिए, और रात को भी, मगर तू ऐ मदा इसराइल तो मकदस में सुकूनत पजीर है, यानी इस खुदा इसराइल की हम सराई पर तख्त। देखिए पॉजिटिव, उस दुख के अंदर खुदा की हमद हो रही है। आगे देखिए, हमारे बाप दादा ने तुझ पर तवक्कुल किया और तूने उन्हें छुड़ाया, उन्होंने तुझे पुकारा और रिहाई हासिल हुई। उन्होंने तुझ पर तवक्कुल किया और शर्मिंदा ना हुए। पर मैं तो कर्म हूं, इंसान नहीं, मैं तो कर्म हूं। आदमियों में जलील, लोगों में हकीर, सब जो मुझे देखते हैं मुझ पर हंसते हैं। वो मुंह चढ़ाते, सर हिलाते, उसका तवक्कुल खुदावन पर है, वो उसे बचाएगा। जबकि वो उसे प्यार करता तो उसे छुड़ाएगा। तू वही है जिसने रहमी से मेरी रहनुमाई की है और मुझे महफूज रखा जब मैं शीरखार ही था। मैं पैदाइश ही से तुझ पर छोड़ा गया। अब ये सारी आप ज़रूर घर जाकर पढ़ सकते हैं। ये आगे ज़बूर बहुत बुलंदी पर ख़त्म होता है। ये ज़बूर आखिर में देखें, आखिरी आयतें हम्द की हैं। आखिरी आयतें मैं पढ़ूंगा इसकी, खुदावंद के तालब उसकी 27 में हमद करेंगे। तुम्हारे दिल अब तक जिंदा रहें, ज़मीन की तमाम हदूद याद करेंगे और खुदावंद की तरफ रुजू लाएंगे और कौमों के सब घराने उसके रूबरू सजदा करेंगे, क्योंकि सल्तनत खुदावंद की है, वही कौमों पर हुकूमत करेगा। और ज़मानों की आखिरी आयत, और ज़मानों की दरासी सॉरी यहाँ से, और मेरी नस्ल उसकी इबादत करेगी। फिर भी दुख में भी देखिए उम्मीद है, मेरी नस्ल उसकी इबादत करेगी। वो खुदावंद की बातें उसकी पुष्ट से बयान करेगी जो आएगी, और वो उस कौम पर जो पैदा हुई है उसकी सदाकत जाहिर है। खुदावंद ने ये किया है। आमीन। अब कंक्लूड करता हूँ, एक और चंद आयतें पढ़कर ख़त्म करता हूँ। थकते नहीं गए हो?
हाँ, ज़बूर 120, हाँ सॉरी 120, बड़ा ही खूबसूरत मुख्तसर ज़बूर है ये भी उसी तरह। ज़बूर 120, मैंने तंगी में मुब्तला होकर खुदावंद को पुकारा, उसने मेरी सुन लिया। खुदावंद मुझे झूठे होंठों से दगाबाज ज़ुबान से रिहाई दे। दगाबाज ज़ुबान तुझे क्या देगी या तुझे क्या बढ़ाई देगी? मुझ पर अफसोस कि मैं माशिक में मुसाफिर हुआ। हाँ, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाता हूँ। ज़बूर 121। ओके, हाँ जी, ये अब ज़बूर 102 की चंद आयतें। मैं अपनी रोटी खाना तक भूल जाता हूँ, मेरी हड्डियाँ आग की तरह जल जाती हैं। देखिए, अपना चेहरा मुझसे छुपाए न रख। मेरे कराहते की शिद्दत की वजह से मेरी हड्डियाँ मेरी खाल से चिमट गईं। मैं खंडरों की चुगदर की मानंद हो गया हूँ, उस चिड़िया की तरह जो अकेली छत पर हो। मेरे दुश्मन दिन भर मेरी मुलामत करते हैं, और जो मुझ पर जलते हैं वो मेरा नाम लेकर लानत करते हैं, क्योंकि मैं रोटी की तरह राख खाता हूँ और अपने पीने की चीज़ में आंसू मुलाता हूँ। तो ये सारी बड़ी उस शिद्दत की दर्द को बयान करता है ज़बूर। इस दर्द में भी खुदा के पास आना है। ऑनेस्ट प्रेयर, खालिस दुआ किया करें, और उसके अंदर आपको की बहुत बड़ी तसल्ली और क़ुव्वत मिलेगी, और खुदा आपको रिहाई देगा। आप हैरान हो जाएंगे, आपकी रूह को खुदा, द लॉर्ड इज़ एक्सटेंडिंग योर सोल टू रिसीव द ग्रेट ब्लेसिंग्स which he has reserved for you. He answers your prayers, but sometimes he keeps you waiting so that you are ready to receive his great gift. If he just gives you suddenly at once, you will not appreciate it. This Parvez, he was shedding tears for 15 years. The Lord prepared him for 15 years to receive that great blessing. The Lord has a plan in your suffering. Pour out your suffering. This is honest prayer, because you love God.